Previously on Ride Buddy. ये कहानी है मई 24 2021 की। एंड लॉकडाउन के टाइम में अगर रास्ते में कुछ हुआ तो देयर वाज नो हेल्प एट ऑल। एंड तभी भगवान की दया से वन बाइकर केम। ट्रू अबाउट ह्यूमन नेचर दैट वंस यू स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स देन योर इनर चाइल्ड कम्स आउट, योर ट्रू नेचर कम्स आउट। दैट डे एट नाइट माई बॉडी वॉज बर्निंग। Hello guys, welcome back to my channel. So this is the part 2 of my biggest adventure, that is Ride to Angul. So in the first part we saw that how I couldn't make it to Angul in my first attempt, that was in 2021. So in 2024 only I made another attempt and we'll see the challenges I faced and the memories I made. So stay tuned and enjoy the video. Now coming to the second part of the story. So this was 15th, yeah, 15th of September 2024. उस दिन संडे था. Of course means I was free that day, and again we were planning something. Means me and my cycling party, we were about to go somewhere, but at the means just before going, means the previous day only the plan got cancelled, and of course I didn't feel good about it. Nobody feels good. In the morning also there was means some chances, there were some chances, but no, we didn't go actually on that trip. So एक दिन क्या होता है, I decided that there is one unfinished dream of mine. Since the past 1087 days I have been dreaming this, that one day I'll go to Angul, and I'll tell you later on what was the exact thought process of mine. So that day what happened, suddenly I decided that I'll go, and I started preparing, and I told my mother that I want to go to Angul. At first of course she was hesitant that तेरे वजह से हम बहुत सुन चुके हैं and और सुनने की हिम्मत नहीं है हमें. So I said no, कुछ नहीं होगा. Now I'm experienced 2 to 3 years of cycling. I've already experienced, and I phoned my father also. He was out of station, by the way. So he said, okay, जो करना है कर. So what happened, I started preparing. I packed my bag, and this time you all guys might be knowing, those who have subscribed me already, those who watch my videos, that I have installed a new carrier in my cycle. So I basically tie up my bag now, and I don't carry my bag on my shoulders. So again, the previous night, Saturday night, one of my cycling partners, Gopal uncle, he called me late at night. I was already ready and I was sleeping, I was into my bed. He called me that we are planning to go somewhere. I said no, I already have plans. He said okay, if you are going, then we will accompany you for the first 50 kilometers, then they will come back because they were targeting for a century. So वो बोले कि हम 50 किलोमीटर तक हम तुम्हें अकम्पनी करके ले जाएंगे, एंड देन विल ड्रॉप यू ऑफ एंड विल सी यू ऑफ. सो आई सेड ओके, इट्स ग्रेट, बिकॉज of course I was nervous. I was nervous because last time the attempt was disaster. I just barely survived. So actually this diary, I have kept this diary with me today because I don't want to miss any point, because this story is very, very close to me. So I began my journey at 5 o'clock in the morning from Sambalpur only, and that day it was raining. The weather forecast was rainy, partially rainy, not completely, but the weather was cloudy, totally cloudy. So मेरा तो मतलब यार beginnings ही बारिश से हो गया. Rain welcomed me actually into the journey. So it didn't matter, we continued, and finally मतलब हम जाते रहे, बीच में ब्रेक्स लेते रहे, और एक जगह हम चाय पीने के लिए रुके. तो अंकल ने मुझे मतलब केला दे दिया, 2 केला, दैट यू कैरी दिस विथ यू, एंड इट केम हैंडी एक्चुअली. एंड आई हैड ऑलरेडी कैरीड डेट्स विथ मी, वो खजूर होते हैं ना. सो आई वाज ऑलरेडी कैरिंग दोज. सो फाइनली हम पहुँचे, मतलब ये 4 माइल है, मतलब संबलपुर से 50 किलोमीटर्स एंड रेड़ाखोल से 19 किलोमीटर के आसपास. वहाँ पे
4 माइल से थोड़ा पहले मतलब हम रुके, वहाँ पे हमने इडली विडली खाई एंड अंकल सेड कि हो गया, नाउ यू कैरी ऑन विथ योर जर्नी, ऑल द बेस्ट, टाटा, जय हिंद. And I sought their blessings, means both my uncles, means Gopal uncle and Baby Chaudhary uncle. So I sought their blessings and I continued on my journey. By the way, I don't own any bicycle light, I don't own any reflector, and I don't have any, means I carried my spare tube, but I didn't have any puncture repairing kit, and neither did I have any, means वो पोर्टेबल हैंड पंप होता है साइकिलिंग का छोटा सा. आई हैव शोकेस दैट इन माई वीडियोज वंस. सो वो भी मेरे पास नहीं था. सो अंकल बोला, अंकल ये चाहिए. अंकल ने खुद अपना वो शर्ट से उतार के रिफ्लेक्टर मुझे दे दिया. एंड ओके, देन आई कमेंस्ड माई जर्नी. एंड दैट टाइम सडनली आई फेल्ट अ वॉइड because there was no one with me. Again I was alone, and that same journey which I couldn't do last time, I was trying to attempt it. So of course I was nervous, but I was excited. I was very very excited that day, and by God's grace the weather was cool, means it was not hot. It was definitely humid, but it was not hot, and I was very very blessed actually. So carrying on further, means सो बिफोर दैट हम जुजुमुरा के आसपास थे, मतलब अंकल लोग तब थे एक्चुअली. आई हैड फॉरगॉटन टू टेल यू दिस. मतलब जाते जाते मेरे साइकिल से वो ना बैग गिर गया. मतलब मैं जो बांध के ले रहा था वो बैग साइड से गिर गया, चक्का में फंस गया. तो जों करके आवाज़ एक तो आया. तो आई मीन्स केम डाउन फ्रॉम माई साइकिल एंड उसको फिर लगाया मैंने जैसे तैसे, एंड आई कंटिन्यूड. 10-15 मीटर के बाद फिर गिर गया. उसको मैं फिर जोर ज़बरदस्ती लगाया, फिर मतलब गोपाल अंकल फिर अच्छे से उसको टाइट करके लगा दिए. गलती एक मैंने ये की कि मेरे दोनों बॉटल्स एक्चुअली उस बैग में रह गए, और उसके बाद अंकल ने टाइट कर दिया. तो मुझे एक्चुअली वो बॉटल निकालने के लिए बैग खोलना पड़ेगा ऑफ कोर्स, मतलब पैकेजिंग वो जो रस्सी से बंधा हुआ है वो खोलना पड़ेगा. सो मैं एक्चुअली गलती कर दिया मैंने. आई शुड हैव केप्ट माई बॉटल्स आउटसाइड, बट इट डिडंट मैटर. आई विल टेल यू हाउ. सो अंकल ने काफ़ी टिप्स विप्स दे रखे थे कि अगर सर का पिछला हिस्सा दर्द करे तो रुक के पानी पीना, ये वो, टेक ब्रेक्स इन 20-25 किलोमीटर्स, एंड बारिश में ज़्यादा भीगना मत, विच आई डिडंट फॉलो. यू विल सी इन द आगे. हाँ, और एक चीज़ मैंने गलती की थी कि ये जो ग्लूकोज का पानी है ना, वो ग्लूकोज का पानी अगर आप 6-7 घंटे से ज़्यादा रख दो तो वो ख़राब होने लगता है, एंड आई डिडंट नो दैट. सो मैं तो जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं पिछली रात से ही ग्लूकोज के 3 बॉटल पानी अपने साथ लेके गया था. तो अंकल ने जब सुना, ही वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस. ओके, सो ही इमीडिएटली रिप्लेस दोज बॉटल्स, एंड उन्होंने मुझे नया बॉटल दिया और तभी बांध दिया जो मैं बोल रहा था. फाइनली मैं निकल पड़ा. रेडाखोल में एंट्री किया. रेडाखोल में मैं कोकोनट वाटर पिया, वहाँ पे मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा वहाँ धूप भी आने लगा था. और वहाँ मतलब आप साइकिलिंग राइड पे जाओगे ना तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे. मीन्स whenever you travel you can come across people, right? सो बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा देख रहे थे ये कौन एलियन आ गया या somebody, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स. ओके, ये बड़ा वीर बहादुर बन रहा है, all those things. Many people, maximum of the people were like this, but some of the people were really really good. One person in Redakhol, he just patted very good. He was like this, and I was, my morale was boosted. Actually it was completely boosted that day, but वो 2 लेवल और बढ़ गया. फिर मैं रेडाखोल में वहाँ से निकलने के बाद आई सडनली रियलाइज्ड कि दिस इज द थ्रेशोल्ड विच आई हैड कम टिल मीन्स लास्ट टाइम, बट नाउ आई एम गोइंग अहेड without any help, and I was suddenly very excited and very very happy. It was a great moment for me actually. Then finally एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको बहुत से ऐसे मोमेंट्स दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअली गोप्रो नहीं है. वॉट एवर आई शूट ऑन माई फ़ोन. सो वो मोमेंट जब आता है तो मतलब वो मोमेंट पास हो, मतलब जब तक मैं फ़ोन निकालता हूँ और कैमरा ऑन करके वीडियो मतलब स्विच दबाता हूँ वीडियो का, तब तक वो मोमेंट पास हो गया रहता है. सो दिस इज़ माई डिमेरिट. सो आपको मेरे जबान से ही उस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा. हाँ, सो अभी ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है तो यहाँ पे आप जानते होंगे काश फूल बोल के एक फूल होता है.
उसको इंग्लिश में कैंस भी बोलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये बहुत आते हैं, मतलब वो खेत खलियारों में, ऐसे जंगल एरियाज में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। एंड दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल टू वॉच। एंड इन माई वीडियो, इन दिस वीडियो यू विल सी अ लॉट ऑफ काश फूल्स, मीन्स कभी कभी तो मतलब खेत पूरे भरे पड़े रहते हैं, पैचेस ऑफ लैंड कम्प्लीटली फील्ड बाय दोज। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। फाइनली अंकल ने फ़ोन किया, मैं तब तक रेडाखोल से भी आगे चला गया था। अंकल पूछा कि कहाँ तक पहुँचा है, तो ऐसे कि अंकल हाँ ऐसा ऐसा है, रेडाखोल मतलब बोइंडा और 30 किलोमीटर से शायद, ऐसा ऐसा। और एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अंकल जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे रास्ता भीगा है, मतलब वहाँ पे बारिश हो रहा है, मैं पहुँचते ही बारिश खत्म हो जा रहा है। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, गॉड इज सपोर्टिंग मी। But you know, God is like, means this. He's not bad. He'll test you. He'll test your metal, what you are made of. Okay. And वो बात करते ही मतलब थोड़े 10 मिनट के बाद ही भगवान ने बारिश कर दी। तो मैं सोचा था कि यार मतलब सर्दी नहीं करना है, क्योंकि अगेन इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। सो मैं मतलब शेड में जाके रुक गया एंड वहाँ थोड़े रेस्ट वेस्ट किया, मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसा ऐसा जा रहा हूँ। और ये जो बोइंडा से 30 किलोमीटर, मतलब बिफोर बोइंडा 30 किलोमीटर बिफोर बोइंडा से बोइंडा तक, ये जो डिस्टेंस था ना, इट वाज वेरी वेरी कम्बरसम फॉर मी। बाय द वे बोइंडा इज़ 45 किलोमीटर्स फ्रॉम अनगुल टाउन। सो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनती 30 किलोमीटर्स थे मेरे लिए, पता नहीं क्यों। मीन्स जितना भी पैडल कर लूँ वो साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहा था, आई डोंट नो वाई। एंड सडनली मीन्स बारिश रुकी तो मैं अगेन कंटिन्यूड माई जर्नी। कुछ देर जाते जाते यार फिर बारिश हो गया एंड आई रियलाइज कि ये लो प्रेशर का बारिश है। एक्चुअली देयर वाज सम साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द बे ऑफ बंगाल दैट टाइम। सो आई डिसाइडेड कि यार मैं ऐसे ही रुकते रहूँगा तो मैं शाम तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। आई कंटिन्यूड माई जर्नी एंड बिलीव यू मी इट वॉज अमेजिंग जर्नी। मीन्स मैं पूरा भीग चुका था, आई वॉज ड्रेंस्ड इन वाटर। मीन्स मैं मतलब अपना हेलमेट निकाल के मैं हैट पहन लिया था, क्योंकि हेलमेट में होल्स होते हैं ना, तो बारिश का पानी अंदर घुसेगा बोल के। एंड माई मतलब उस हैट से भी पानी ऐसे ऐसे मतलब मेरे गाल से रिस्क के नीचे गिर रहे थे एंड आई वाज कम्प्लीटली ड्रेंस्ड इन वाटर। एंड तभी मतलब कुछ देर आगे जाते ही एक मतलब कार में एक फैमिली आता है। ओके। सो वो फैमिली में मतलब जो ड्राइविंग कर रहे थे, एक ही वॉज अ मेल about middle age male. So he talked to me very politely. Okay, means कहाँ जा रहे हो? And I think his wife was sitting next to him, so she actually conveyed his messages because it was his voice was not so loud. So कहाँ जा रहे हो? And they asked me where am I from, and then they give me all the best, and he said I'll okay, and then I continued my journey further ahead. और फिर जाते जाते बीच में मतलब काफ़ी अच्छे लोग मिले, मतलब बाइक में ऐसे लोग जाते रहते थे, सब कोई ऐसे, कोई दूर से कोई ऐसा टाटा मैजिक वाला जा रहा है, वो ऐसे हाई कर रहा है कोई। हाँ, बीच में तो 2 लड़के मिले थे, ये मीन्स दे वर वेरी वेरी हैप्पी ऑन सीइंग मी। ओके, सो दे वर लाइक या जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी, एवरीथिंग मीन्स दे सेड एवरीथिंग एंड आई ऑल्सो रिप्लाइड देम बैक। ओके. And so these kind of people you come across while cycling, and it's very very amazing actually. Means there are so good people in in the society. So yeah, means when I was cycling and it was raining continuously, one biker came. He asked me कि कहाँ जा रहे हो? He was speaking in Odia. So कोडी जाओ तो means कहाँ जा रहे हो? And first time when he came, he asked me basic details, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? Then I think he stopped somewhere due to some work. थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर वो बंदा आया। नेक्स्ट टाइम ही आस्क्ड कि तो मैं साइकिल रे कौन पाई जाऊँ तुझे, मीन्स व्हाई आर यू साइकिलिंग, ही सेड. So I means this was out of the syllabus question for me. People ask me where are you from, how much distance are you cycling, I can answer all those. But ये क्यों साइकिलिंग कर रहे हो यार? मैं बोला मतलब बोलने लगा जी, I like this, this is my passion. So he said okay. So I came to realize कि cycling is not a very very glorious sport. Means people don't know that they can cycle. Means people can cycle to such distances. Of course 160 kilometers is not a great distance. People are cycling much more than that. But still many people don't even venture out in their cycles. So people should venture out in their cycles. This is what I believe. So then further continuing ahead, I came across a person, same person, third time, and he said, that time I was completely drenched in water. So he said, you should stop somewhere, you are getting wet.
सो मीन्स कम्प्लीटली भीग गए हो. सो आई रियलाइज आई रिप्लाइड टू हिम कि आ गया मुँह तो पूरा भिजी जाइए ଆଉ କେତେ ଭିଜିବି मीन्स आई एम कम्प्लीटली ड्रेंस्ड इन वाटर, आई एम कम्प्लीटली वेट और कितना भीगूंगा मैं. I replied like this. He also laughed. I also laughed, and then he said, "Okay." Means he wished me luck, and I continued my journey further ahead. Finally, मैं बोइंडा से 10 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट में रुका, वहाँ खाना वाना खाया, मस्त मतलब पेट वेट भर गया. एंड वहाँ पे थोड़ा देर रुका ताकि खाना नीचे जाए. एंड मतलब तब तक 12:30 बजे था, एंड आई वॉज कम्प्लीटली हंग्री. और वो खाना खाने के बाद बिलीव यू मी, मुझे साइकिल ना मतलब रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा. पता नहीं, देयर वाज अ सडन गस्ट ऑफ एनर्जी इन माय बॉडी. इवन इन इंक्लाइंस ऑल्सो ना आई वाज साइकिलिंग इन फुल गियर 3-7 में. मतलब गियर कम नहीं कर रहा था मैं. मतलब 3-7 में मेरे को मतलब मेरे जांघों को कुछ फील ही नहीं आ रहा. आई वाज इन कम्प्लीटली ऑटो पायलट मोड, and there was sudden gust of energy in my body, and I was cycling in a very very good speed. Then suddenly my cycle started to develop some faults. वो मतलब लेफ्ट पैडल थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाने लगा मेरे को. I could feel it, and there were some creaking sounds coming out of them, and gear shifting भी थोड़ा दिक्कत आने लगा क्योंकि मैं मतलब काफ़ी mud and water से मैं जा रहा था ना. So that those things are actually not so good for your cycle's components. So then further moving ahead, मतलब वेलकम टू अनगुल का बोर्ड आ गया. और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. दैन आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग माई डेस्टिनेशन. और फाइनली मैं अनगुल पहुंच गया. वहाँ भी कुछ बाइकर्स ने मुझे ग्रीट किया, एंड पीपल वेर good. But most of the people, as I said, they were looking as this, who this guy really is. We haven't seen some people doing something like this. So they were like that, and I was quite enjoying my time there, and I was very very excited actually. The journey was amazing. I enjoyed the journey as well, and I stress on this because if you are cycling, you have to enjoy the journey as well. Otherwise, you won't be able to cycle. एंड फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने का तो एक जोश हमेशा होता ही है. तो फाइनली मैं अनगुल पहुंचा. वहाँ मेरे दो दोस्त रहते हैं, तन्मय एंड सूरज. सो आई वेंट टू द होम फर्स्ट बिफोर घर में घुसने से पहले, एंड आई ग्रीटेड देम, एंड दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी टू सी मी. एंड फाइनली आई रीच्ड होम. एंड अगेन मीन्स आप मेरा पिछला मतलब स्टोरी का फर्स्ट हाफ का अगर देखोगे तो मैं जब पिछली बार घर में घुसा था तो मेरे को सबसे पहले गालियों से ही मेरा स्वागत हुआ था. एंड दिस टाइम ऑल्सो पीपल वेर हैप्पी मीन्स दैट आई हैव कंप्लीटेड माई जर्नी ऑन साइकिल. बट अगेन अब जब कोई गेस्ट घर में आता तो क्या बोलते हैं, आइए वेलकम वट एवर. माई अंकल्स फर्स्ट सेंटेंस वाज, आर यू मैड? He was like this, okay. So, तू पागल है क्या? He was like this, and I reached I took off my shoes and my feet was completely white as you can see. उसके बाद मैं घर में ऐसा फ़ोन लगाया कि मैं पहुंच गया हूँ. मैं मम्मी को बोला पप्पू पास हो गया. This was my winning call sign actually. So उसके बाद I took rest, and guys, this journey was very very close to my heart, and I have written something down here. Okay, मैं टोटल जर्नी ये जो 160 किलोमीटर्स का है वो स्ट्रावा ने मुझे 10 किलोमीटर का धोखा दे दिया, और मतलब 150 किलोमीटर से मेरे रिकॉर्ड हुए थे. एंड दूसरा चीज़, मैं 1.5 लीटर पानी में टोटल जर्नी कंप्लीट किया हूँ 160 किलोमीटर्स का. इट टुक मी 11 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, सुबह 5 से शाम के 4 तक. और साइकिलिंग आवर्स उसमें से 8 घंटा कुछ दिखा रहा था स्ट्रावा में, बट इट वाज मोर देन दैट. मेरा रेस्ट टोटल मिला के 1-1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा ही रहा होगा. ओके या सो आई हैड रिटन बेसिकली दिस दैट मतलब पिछली बार मेरे मम्मी को बहुत कुछ सुनना पड़ा था, एंड बोथ माई पेरेंट्स एक्चुअली, नॉट ओनली माई मदर अलोन, बट स्टिल दे डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम साइकिलिंग. दे बिलीव्ड इन मी, एंड उससे भी ज़्यादा आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. सो दे डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम साइकिलिंग, एंड फाइनली आई एम हियर. आई हैव कंप्लीटेड ग्रेट माइलस्टोन इन माई लाइफ, एज आई वुड से, एंड एक्चुअली मैनी मोर टू कम. So let's see what happens. Means I'll definitely keep cycling, and I insist you also that keep cycling. Enjoy this life, yaar. Means cycling gives you a great life. I'm actually enjoying my life. Means whenever I'm cycling, I'm enjoying that part of my life. So or else you can pick up any hobby, but of course ये bike में जाना, I don't prefer that. I prefer cycling to bike because ये
एक तो आपका कुछ मतलब एक्सपीरियंस उतना खास नहीं होगा. Cycling gives you a spiritual experience. You actually, if you means, don't listen to music while cycling, because then you and your mind are talking. There is no one else. It means, especially when you're cycling alone. So you are forcing your mind to take the next pedal. So you are constantly asking yourself to upgrade. So this is what cycling gives to you. बाइक में तो कुछ नहीं होता यार. अब एक्सेलरेटर मोड़ो, वो अपने आप चलेगा. So that doesn't give you a good experience, I believe. I may be wrong. Means there are lot of many bikers than cyclists, but cycling is definitely gives you a spiritual experience, basically mindful experience. You're talking with your mind, and I think this helps in your evolution. So pick up cycling, guys, and protect nature. Explore nature, but protect nature. मैं अब भी जहाँ भी बैठा हूँ, आप देख सकते हैं लोगों ने कूड़ा वूड़ा फैला के रखा है. तो इतना अच्छे जगह को उन लोग ख़राब करके चले गए हैं. सो दिस इज़ नॉट गुड. सो आई दैट्स इट फॉर टुडे. There are many more stories to come, God willing, and please share this video to maximum people, because I want this message to get spread. More people should be benefited from this, and keep cycling, stay fit. Jai Hind, bye bye.